વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો વિષય છે હિન્દી, ધોરણ 9, પાઠ 3, ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય। પાઠનો પ્રકાર છે નિબંધ અને લેખક છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી। સૌથી પહેલા જોઈએ તો નિબંધ એટલે શું? નિબંધ એટલે કોઈ પણ વિષય હોય, કોઈ પણ મુદ્દો હોય, તે મુદ્દા ઉપર કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે પોતાનો મત કે પોતાનો અભિપ્રાય રજૂ કરે તો એને આપણે નિબંધ તરીકે ઓળખીએ છીએ। તો અહીં આ જે પાઠ છે એમાં આજની પરિસ્થિતિના સંદર્ભમાં લેખકે પોતાનો મત કે અભિપ્રાય આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે અને તેથી આ પાઠને ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય એ પાઠને આપણે નિબંધ તરીકે ઓળખીશું। પાઠના લેખક છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી। હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી એ હિન્દીના એક ઉત્તમ નિબંધકાર છે અને હિન્દી સાહિત્યમાં એમનું મહત્વનું યોગદાન રહ્યું છે। હવે જુઓ કે પાઠ 3 ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય, તો એ પાઠમાં મુખ્ય બાબત શું છે? પાઠનું શીર્ષક છે ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય। એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જ જાય કે લેખક શું કહેવા માંગે છે। શું નિરાશ થવું જોઈએ? પ્રશ્ન કરે છે લેખક અહીં। તો આ વાતને રજૂ કરવા માટે એમણે આજનો જે માહોલ છે, આજનું જે વાતાવરણ છે, આજના લોકોની જે માનસિક પરિસ્થિતિ છે, દેશની જે પરિસ્થિતિ છે, એને આપણી સમક્ષ મૂકવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને તેની સામે એમણે આ વાત રજૂ કરી છે કે ભલે કદાચ આજની પરિસ્થિતિ દુઃખદ છે અને તેમ છતાં પણ આપણે નિરાશ થવાની જરૂર નથી અને એની પાછળ એમણે બે મહત્વના કારણો રજૂ કર્યા છે કે ભલે પરિસ્થિતિ એવી છે, ભ્રષ્ટાચારની બોલબાલા છે, અનીતિની બોલબાલા છે, પછી નવા અને જૂના વચ્ચેનો સંઘર્ષ જોવા મળે છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ કદાચ પ્રામાણિક નથી એવું આપણને આજે લાગી રહ્યું છે અને અખબારોમાં પણ ભ્રષ્ટાચાર કે એવી જ બાબતો કેન્દ્ર સ્થાને આપણને જોવા મળે છે। તેમ છતાં પણ ભલે આવા વિષમ સંજોગો હોય, વિપરીત પરિસ્થિતિ હોય, તેમ છતાં પણ આપણે નિરાશ થવાની જરૂર નથી। તો એના માટેનું કારણ બતાવતા એ જણાવે છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જે ઉમદા બાબતો રહેલી છે તો એને આગળ એ લેખક ધરે છે અને એમણે જણાવ્યું છે કે પ્રાચીન નીતિ જે છે, આદર્શો જે છે, પ્રામાણિકતા, પ્રેમ, દયા, કરુણા જેવી બાબતો છે, એ ભલે આજે ઢંકાયેલી છે પણ એ સંપૂર્ણપણે નાશ પામી નથી અને એને કારણે આપણે નિરાશ થવાની જરૂર નથી। ભલે એ પ્રાચીન આદર્શો ક્યાંક આપણને ધક્કે ચડી ગયેલા જણાય કે એનું મહત્વ કદાચ લોકો નથી સમજી રહ્યા એવું લાગતું હોય, તેમ છતાં પણ આ તમામ આદર્શો આજે પણ માણસના સ્વભાવ સાથે સંકળાયેલા છે। ભલે એ ઢંકાયેલા છે પણ નાશ પામ્યા નથી અને તેથી આપણે હતાશ કે નિરાશ થવાની જરૂર નથી। તો એ વાતને એમણે અસરકારક રીતે રજૂ કરવા માટે ટિકિટ માસ્ટર અને બસ કંડક્ટરનો જે દ્રષ્ટાંત છે એ આપીને એમણે પોતાની વાતને અસરકારક રીતે રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે। तो कथानक जो बात करिए सौથી पहला आज का माहौल, तो देखिए कि आज इस तरह का माहौल हमें देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार की बोलबाला है। हर अखबार में शायद आज इस तरह के न्यूज़ हमेशा छपते रहते दिखाई दे रहे हैं और जो कोई व्यक्ति बड़ा है, ऊंचे स्थान पर है, तो हर कोई व्यक्ति शायद उनके दोष निकालने का प्रयास करता रहता है और परिश्रम करने वालों को मूर्ख समझा जाता है और परिश्रम ना करने वाले जो है लोग वो फल फूल रहे हैं। तो इस तरह का माहौल आज हमें चारों ओर दिखाई दे रहा है। तो यह माहौल देखकर स्वाभाविक है कि हर एक व्यक्ति के मन को पीड़ा पहुंचती है। दूसरी बात यह कि पुराने और नए का टकराव, तो हम जानते हैं कि युग बदलता है तो उनके आदर्श भी बदलते हैं।
पुराने कायदे कानूनों की जगह नए कायदे कानून ले लेते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हर वक्त नए कायदे कानून जो है वो सब लोग उनका स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। आज की स्थिति में कुछ ऐसी ही है, इसमें कुछ नया नहीं, हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है। तो देखिए कि हर एक व्यक्ति नए कायदे कानून जो है उनको संपूर्ण रूप से शायद स्वीकार नहीं करता, इसीलिए नए और पुराने आदर्शों के बीच का टकराव अवश्य होता है। तो आज भी शायद यही हो रहा है। और तीसरी बात है भारत का आदर्श। तो देखिए कि हमारा देश जो है उनके आदर्श हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है उनमें भी उद्घाटित हुए हैं। हम जानते हैं कि भारत के लोगों ने कभी भी भौतिक संपदा को महत्व नहीं दिया है। दोस्त जो है वो किसी भी तरह हर एक व्यक्ति के स्वभाव के साथ जुड़े हुए हैं। फिर भी हमारे देश के लोगों ने हमारे आदर्श के तहत नीति, प्रामाणिकता, सज्जनता जैसे उम्दा गुण जो है उनको बनाए रखने का प्रयत्न किया है। तो भारत के लोगों ने काम, क्रोध, मोह आदि जो चीजें हैं उनके ऊपर हमेशा संयम रखने का प्रयत्न किया है। तो यह है हमारे देश का आदर्श, भारत का आदर्श, जो एक मनुष्य को एक उम्दा मनुष्य बनाए रखने का काम करता है। और आज का माहौल जो है इसके पीछे ये परिस्थितियां भी जिम्मेवार है, लक्ष्य की उपेक्षा का परिणाम। तो हम जानते हैं कि आज हमारा देश जो है तो उसमें कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के सर पर जो जिम्मेवारी है तो उस जिम्मेवारी को व्यवस्थित रूप से शायद अदा नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों का भला होना चाहिए, जिन लोगों की स्थिति सुधरनी चाहिए, जिस क्षेत्र में तरक्की होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, तो शायद उसके उनकी तरक्की होने के बजाय जिनके सर पर जिम्मेवारी है वो लोग अपना भला कैसे हो उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। और इसके कारण आज के जो हालात है, कृषि हो, शिक्षण हो, किसी भी क्षेत्र हो, तो उनकी परिस्थिति जो है वो सुधरनी चाहिए, वो सुधर नहीं रही। तो देखिए कि इस तरह के कारण जो है वो आज के हालात के लिए जिम्मेवार है। फिर भी लेखक जो है उनको इस बात का यकीन है कि भले ही आज इस तरह का माहौल है, फिर भी हमारे अंदर जो प्राचीन आदर्श पड़े हुए हैं वो आज के माहौल की वजह से भले ही ढंग क्यों न गए हो, लेकिन वो आदर्श जो है वो पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुए हैं। इसीलिए हमें आज के हालात को देखकर इतना उदास या निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में ये प्राचीन आदर्श जो है वो अवश्य टिके हुए हैं। इसीलिए हमें हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को व्यवस्थित ढंग से समझाने के लिए उन्होंने अपने जीवन में घटी हुई 2 घटनाएं हैं उनको यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। तो देखिए कि टिकट मास्टर की प्रामाणिकता। एक बार जब लेखक किसी यात्रा करने जा रहे थे तो उस दौरान उन्होंने ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए टिकट मास्टर को 10 रुपये का नोट 100 रुपये का नोट गलती से दे दिया और उन्होंने समझा कि उन्होंने 10 रुपये का ही नोट दिया है। तो बाद में टिकट लेकर वो वहीं से चल देता है। लेकिन बाद में टिकट मास्टर भी उस वक्त तो शायद अनजान था, उनको भी पता नहीं था कि लेखक ने 100 का नोट दिया या 10 का नोट दिया। तो उसके दिमाग से भी ये बात निकल गई कि बाद में टिकट मास्टर को पता चला कि उस व्यक्ति ने तो मुझे 100 का नोट दिया है। तो तुरंत टिकट मास्टर जो है वो बाकी 90 रुपए लेकर लेखक को खोजने के लिए वो वहीं से आगे बढ़ता है और तुरंत लेखक की खोज करके उसे वापस 10 रुपये लौटा देता है। तो यहाँ पर देखिए कि उस व्यक्ति ने जो प्रामाणिकता प्रकट की, तो उससे ये साबित अवश्य होता है कि आज भी मनुष्य के हृदय में प्रामाणिकता जैसे गुण जो है वो विद्यमान है। वो प्राचीन आदर्श जो है वो भले ढक चुके हैं लेकिन वो नष्ट हुए नहीं है। और दूसरी घटना है बस कंडक्टर की सज्जनता। तो एक बार लेखक यात्रा कर रहे थे बस में, तो उस दौरान रात्रि के समय बस जो है वो रास्ते में जवाब दे देती है।
मतलब बिगड़ जाती है। तो लोग तरह तरह के अपने विचार प्रकट करते हैं। कंडक्टर दूसरी बस लेने के लिए गया है, फिर भी लोग जो है वो समझते हैं कि जानबूझकर कंडक्टर और ड्राइवर दोनों ने लोगों को परेशान करने के लिए यह तरीका आजमाया है। और उन्होंने सोचा कि कंडक्टर किसी से मिला हुआ है, ड्राइवर मिला हुआ है, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ये तकलीफ में हमको डाला है। लेकिन कुछ घंटों के बाद ये घटना घटित होती है कि कंडक्टर रात्रि के दौरान बस को लेकर वहां उपस्थित होता है और जाते वक्त कंडक्टर ने देखा था कि कुछ बच्चे जो है वो बिलख रहे थे, इसीलिए उन्होंने उनके वास्ते पानी और दूध का भी प्रबंध किया। तो जब कंडक्टर वहां उपस्थित होता है तो उनकी सज्जनता जो है उनका परिचय लेखक को मिल जाता है। तो मुख्य रूप से लेखक इन दृष्टांतों के जरिए यह बताना चाहता है कि भले ही आज का माहौल हमें खराब लगता हो, भ्रष्टाचार की बोलबाला लग रही हो, लेकिन ये दो घटनाएं जो घटित उनके जीवन में होती है उसके जरिए उनको इस बात का यकीन अवश्य हो ही जाता है कि हमें आज के माहौल से दुखी होने की, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है।